equation. This continuity equation states that the divergence of electric current density is the negative rate of change of volume charge density. This equation we have to derive. This is very important equation for conductor because volume charge density of the conductor decays as time increases. So with the help of this derivation and the solution of the continuity equation, we will find this result कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है कंडक्टर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिके होता चला जाता है और फिर उसके साथ रिलैक्सेशन टाइम का क्या कांसेप्ट है और कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के लिए रिलैक्सेशन टाइम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी बातों का डिस्कशन हम कंटिन्यूटी इक्वेशन उसके सॉल्यूशन से कर सकते हैं. So del dot J equals to minus del dot V by del T. This equation we have to derive. Firstly, how can we define the current? The basic definition of the current is the rate of change of charge dq by dt. But we know that the physical existence of the charge is only because of electron. So electron is having the negative charge, so this is minus dq. So I can write d by dt. Q is nothing but integral rho v dv, because we know that rho v dv, because we know that volume charge density, after volume integral of the volume charge density we will get the charge. So rho v dv volume integral is nothing but the charge. So I can write minus integral del rho v by del t volume integral is nothing but the current. There are other ways of defining the current in terms of current density. Current density की क्या definition है? Current density J is the current per unit area di over ds. Limit ds tends to 0. Why? Because again we are assuming that current is uniformly distributed over the surface area of the conductor. So J is equals to limit ds tends to 0 di by ds. From this we can write di is equals to j dot ds, and after integrating this, after closed surface integration of this, we will get I is equals to integral closed surface integral j dot ds. And whenever the closed surface integral is appear in the expression, definitely we will go for the divergence theorem. So we can apply the divergence theorem here. According to the divergence theorem, closed surface integral of any vector is equals to the volume integral of the divergence of the same vector. तो डाइवर्जेंस थ्योरम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए ऐसा नहीं है, डाइवर्जेंस थ्योरम कहीं भी लगाई जा सकती है, किसी भी वेक्टर के लिए लगाई जा सकती है. कंडीशन केवल इतनी कि किसी भी वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो. तो यहां देखिए वेक्टर j का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस की वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर. So this is the divergence theorem. Earlier we have applied the divergence theorem for electric flux density, capital D, and now we are applying the divergence theorem for electric current density, that is capital G. So this is the expression we are having. तो आप देखिए कि ये भी करंट है, क्योंकि हमारे पास करंट की एक्सप्रेशन I बराबर J डॉट ds सरफेस इंटीग्रल. तो ये भी करंट है और ये भी करंट है. ये दोनों करंट की एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. So from the equation number 1, current is the negative integral of the negative volume integral of the rate of change of volume charge density, and from the second equation, current is the volume integral of the divergence of electric current density. इन दोनों ही एक्सप्रेशन को यदि हम कंपेयर कर लें और दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दें तो हमारे पास रिलेशन जो आएगा वो होगा del dot J is equals to minus del rho v by del T, which is a very famous equation and it is known as continuity equation of the conductor. Continuity equation of the conductor जो हम derive करना चाहते थे ये. और continuity equation को derive करने के बाद definitely we are interested to determine its solution, because उसका solution निकालने पे हमें relaxation time का concept पता चलेगा, conductor का relaxation time, dielectric का relaxation time, किसकी volume charge density का decay fast होता है, कंडक्टर का या डाइलेक्ट्रिक का, और उनके रिलैक्सेशन टाइम का कंपैरिजन. वो रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल है या परमिटिविटी के, या दोनों पर डिपेंड करता है या किसी एक से इंडिपेंडेंट. ये सारे तमाम सवालों के जवाब हमें इसके सॉल्यूशन से मिलेंगे. तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं.
So del dot J is equals to minus of del rho v by del t. अब तीन इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में और मटेरियल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस। हालांकि उनमें से दो की जरूरत हमें पड़ेगी, लेकिन हम तीनों यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए उसमें पहला इक्वेशन है d इक्वल्स टू एप्सिलॉन e, दूसरा है j इक्वल्स टू सिग्मा e, और तीसरा है b इक्वल्स टू म्यू h। और इन तीनों इक्वेशन की खासियत क्या है कि ये तीनों इक्वेशन किसी भी मशीन या किसी भी डिवाइस को पूरी तरह से कैरेक्टराइज करती है। कैसे? क्योंकि ये तीनों हैं डेंसिटी, और ये तीनों हैं इंटेंसिटी, और ये तीनों हैं प्रॉपर्टीज। वी कैन से दैट this is electric flux density, electric current density, magnetic flux density। ये तीनों डेंसिटी होंगी हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तीनों इंटेंसिटी हो गई। और ये परमिटिविटी, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी। कोई भी हम डिवाइस या मशीन लेंगे, सपोज ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में हमें कंडक्टर भी मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक भी मिलेगा, और मैग्नेटिक मटेरियल भी मिलेगा। कोर मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है, ये इक्वेशन कोर के लिए सूटेबल है, इसलिए हम CRGO का या हॉट रोल्ड स्टील का या किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के BH कर्व की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है मशीन्स में या मैग्नेटिक्स में। आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे या मशीन बनाएंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग लेंगे या स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग लेंगे, तो वाइंडिंग किससे बनेगी? कॉपर से। कॉपर इज अ कंडक्टर, ये इक्वेशन उसके लिए सूटेबल। J बराबर सिग्मा E, बिकॉज़ करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। कोई भी डिवाइस या मशीन बिना इंसुलेटिंग मटेरियल के नहीं बनेगा, तो उसमें पेपर इंसुलेशन रहेगा, प्रेसबोर्ड इंसुलेशन रहेगा, A क्लास, E क्लास, F क्लास, B क्लास, C क्लास, H क्लास, कोई भी इंसुलेशन रहेगा, इंसुलेशन के लिए इक्वेशन। So this first equation is for dielectric, I can specify over here dielectric or insulation. The second equation is for conductor or conducting material, and third equation for magnetic मटेरियल में इंडक्शन मोटर का रोटर हो सकता है या ट्रांसफार्मर की कोर हो सकती है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल हम इनमें से पहली और दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए देखिए, डेल डॉट J की जगह हम क्या रख सकते हैं? सिग्मा E। Sigma E is equals to minus del rho v by del t. And from the first equation, we can say that electric field is V by epsilon. So I can say del dot sigma, और E की जगह हम क्या रख सकते हैं? V by epsilon is equals to minus del rho v। अब ऐसा क्यों रखना है, उसके पीछे कारण है। कारण ये कि सिग्मा कंडक्टिविटी है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर ले लेंगे तो डेल डॉट डी क्या बन जाएगा? रो वी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, और ये पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में आ जाएगी? रो वी। वी कैन से दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो इट इज इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन। So I can write sigma upon E del dot D is equals to minus del rho v by del T, and this is sigma by epsilon del dot D is nothing but rho v is equals to minus del rho v by del T। तो ये बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन तो हमारी कंटीन्यूटी इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, और इससे हम आगे के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं। sigma by epsilon rho v is equals to minus del rho v by del t. So I can write here sigma by epsilon del t with minus sign is equals to del rho v by rho v, and I can use the integration. Integration del rho v by rho v is nothing but log rho v, right? Log rho v to the base e, natural log. And this is minus sigma by epsilon into t plus constant, let's say k. So the solution is rho v is equals to e to the power minus sigma by epsilon into t plus constant k. Shall I write like this?
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और रो v की हमें जो वैल्यू मिलेगी e to the power constant e to the power minus sigma by epsilon into t और फिर हम इसे लिख सकते हैं रो v e is an exponential constant, k is also a constant, constant raised to constant is again a constant. Let's say rho naught e to the power minus sigma by epsilon into t. ये हमें मिल गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन एज ए सॉल्यूशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देखी थी del dot g is equals to minus del rho v by del t, उसके सॉल्यूशन के तौर पर हमें ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑफ कोर्स इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई कैन राइट इन ब्रैकेट स्मॉल t. दिस इज इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी which is fixed and this term will give us the time constant। ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट बनाता हूं, सबसे पहली बात तो t का जो कोफिशिएंट है इसको पलट दीजिए तो एप्सिलॉन बाय सिग्मा ये हो जाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? रिलैक्सेशन एप्सिलॉन बाय सिग्मा, एंड आई कैन वेरी वेल से दैट टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय सिग्मा इज नथिंग बट आरसी। सबने सर्किट थ्योरी में आरसी सर्किट पढ़ा है, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, ये आरसी के बराबर है। हाउ कैन आई से दैट? बिकॉज़ resistance is directly proportional to 1 upon sigma or inversely proportional to conductivity. Inductance is directly proportional to permeability and capacitance is directly proportional to permittivity. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि सर्किट थ्योरी में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पैरामीटर पढ़ते हैं और ये पैरामीटर्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी है, इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमीएबिलिटी है और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है। तो अगर आप यहां से देखें ये एप्सिलॉन है और ये सिग्मा, तो अगर आप R और C का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बाय सिग्मा। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं। तो टाउ इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय सिग्मा इक्वल्स टू RC। दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर टाइम कांस्टेंट। और इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये एक्सपोनेंशियल डिके बताएगा। आइए इसको भी देखते हैं। rho v equals to rho naught e to the power minus sigma by epsilon into t. If we are going to plot this, the characteristic is like this. This is exponentially decay. So when time t is equals to 0, time t is equals to 0, e to the power 0 is 1, rho v is equals to rho naught. So this is the initial volume charge density of the conductor. तो कंडक्टर की इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho naught है और जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस में इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिके होती चली जाती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी घटती चली जा रही है जैसे कि ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है। और आप t की जगह टाउ मतलब कि एप्सिलॉन का सिग्मा इस एक्सप्रेशन में यदि सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहां आप लिखेंगे rho v हमें मिलता है rho naught e to the power सिग्मा बाय एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बाय सिग्मा कैंसिल यानी -1 यानी rho v 0.368 of rho naught। What does it mean? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी इस समय पर इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की 36.8% कितनी है? 36.8%। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी डिके हो रही थी, ठीक है? तो डिके होते होते एक पॉइंट हमें मिलेगा जब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.368 ऑफ rho naught और इस समय जो टाइम होगा वो t बराबर टाउ बराबर एप्सिलॉन बाय सिग्मा बराबर RC इसके बराबर। मतलब हम कह सकते हैं हाउ कैन यू डिफाइन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ कंडक्टर और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक? रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम एट व्हिच द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक becomes 36.8% of the initial value of the volume charge density. Or we can say that how much decay is there? Of course 63.2, 0.632 or 63.2
परसेंट, मतलब जब हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होते होते 63.2% के डिके को प्राप्त कर लेगी या डिके होने के बाद इतनी वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे, उस समय हमारा टाइम कांस्टेंट रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल होगा, टाउ बराबर RC और एप्सिलॉन पर सिग्मा। अब कई बार हमें क्वेश्चन फंडामेंटली अगर हमें पूछना है, ये देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको दे दी, दिस इज लेट्स से कंडक्टर 1, दिस इज लेट्स से कंडक्टर 2, और हम आपसे कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम किसका ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि दोनों की इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, तो निश्चित तौर पे दोनों की 36.8% वैल्यू जो आएगी वो भी सेम पॉइंट पे आएगी, यानी 36.8% को हमने मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद हमें ये दो पॉइंट मिल गए A और B, और A और B से हमने परपेंडिकुलर खींच लिया, तो ये हमारा टाइम हुआ, ये हुआ टाउ 1 और ये हमारा टाइम हुआ टाउ 2। तो हम देख रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट किस केस में ज्यादा आ रहा है, टाइम कांस्टेंट हमारा ज्यादा आ रहा है C2 के केस में, यानी कंडक्टर जो हमारा C2 है उसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है मतलब सेम डिके को प्राप्त करने में उसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। दोनों कंडक्टर हैं, दोनों की इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समय के बढ़ने के साथ साथ घट रही है, और किस प्रकार घट रही है, एक्सपोनेंशियली घट रही है, लेकिन सेम डिके को प्राप्त करने में कंडक्टर 2 को C2 को ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है। और दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि टाउ इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय सिग्मा, जिस कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्योंकि कंडक्टर के लिए परमिटिविटी को कांस्टेंट माना जा सकता है, लगभग बहुत कम होती है 1 के आसपास, तो C1 और C2 में किसका सिग्मा बड़ा होना चाहिए, दिस इज सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2, डेफिनेटली जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा उसका सिग्मा कम, इसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, C2 का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, इसका सिग्मा कम होगा, यानी सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा 1। So these kind of interpretation we can get as a result from the continuity equation and its solution, और ऐसे तमाम सारे सवाल